ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو اقرا بلال اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ عزیزان من، شجرکاری اس لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک درخت جو ہے وہ کم و بیش 12 بچوں کے لیے آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ مجھے 37-38 برس ہو گئے ہیں یہ پروگرام کرتے ہوئے، اور میں ہر سال اس بات کی لوگوں کو گواہی دلواتا ہوں کہ شجرکاری ہو۔ پھر اخباروں میں دیکھتا ہوں کہ شجرکاری کے اس نے اتنے کروڑ حکومت پاکستان نے درخت لگائے، محکمے نے درخت لگائے، لیکن کچھ عرصے کے بعد نہیں معلوم وہ درخت کہاں چلے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں، کہ درخت لگانے کے بعد آپ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی درخت بھی لگایا تھا، اس کو وقت پر پانی بھی دینا ہے، اس کو وقت پر کھاد بھی دینی ہے، اور جب وہ خود اپنی اس کی جڑیں زمین سے اپنا رزق کشیدہ کرنے کے قابل ہو جائیں تو پھر مالی کی طرح بے پرواہ ہو جائیں۔ جس طرح یہ بالکل ماں اور بچے کا سوال ہے، جس طرح ماں چھوٹے بچے کو سارا دن گود میں لیے پھرتی ہے، اس کی خوراک کا خیال کرتی ہے، اس کا وقت پر دودھ، وقت پر رونا، وقت پر جاگنا، وقت پر سونا، یہ ساری باتیں ماں کے لیے حفظ ہوتی ہیں۔ اسی طرح مالی کا بھی کام ہے کہ جب وہ کوئی شجرکاری کرے، درخت لگائے، تو پھر اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کب پانی دینا ہے، کب اسے کھاد دینی ہے، کتنا عرصہ اس کو دھوپ سے بچانا ہے، اور مالی کا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے پاواں نہ لاوے۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے تو ایک بیٹا پیدا کرو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایک درخت لگا دو۔ یہ دونوں چیزیں تمہیں دیر تک زندہ رکھیں گی زمانے کے ہاتھوں کہ یہ درخت اس کا لگایا ہوا ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ آپ درخت لگا کے اس کو بھول جائیں، کوئی جنگلی جانور منہ مار جائے، کوئی پتھر کے نیچے آ جائے، تب خشک ہو جائے۔ اور وہ یہاں پر بات ختم کرتا ہوں کہ بعض درختوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ زبان حال سے پکارتے ہیں کہ سایہ طلب گئے جدھر، بول اٹھے وہی شجر، آئے ہو اب مسافرو جب ہمیں دھوپ کھا گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گوفی جم سم چیوسٹک ان کی کینڈیز ہیں، اور پہلا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ غزوہ بدر کو۔ غزوہ بدر جواب درست ہے، تشریف لے آئیں۔ انگلش الفابیٹ ایس جے کس جنگی اعزاز کا مخفف ہیں؟ ستارہ جرت۔ ستارہ جرت جواب درست ہے، تشریف لیں۔ دونوں مہمان گوفی جم سم چیوسٹک کے تھے۔ گوفی جم سم کے انعامات اور کیش لفافیہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو مبارک ہو۔ بسم اللہ۔ لاسانی جوشاندہ پلس ملٹھی کے مہمان، آج ان کا سیمی فائنل ہے، تشریف لے آئیں۔ عارفہ آفتاب اور طاہر الطاف۔ آپ دونوں مہمان ہیں لاسانی جوشاندہ پلس ملٹھی کے۔ کہتے ہیں کہ 100% نیچرل
मसनूई फ्लेवर से पाक, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक, जोशांदा प्लस मलट्ठी। लासानी का जोशांदा प्लस मलट्ठी, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक, लासानी का जोशांदा प्लस मलट्ठी। आपसे पहला सवाल है अल्ताफ साहब, ऐलान नबूवत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी पर चढ़कर लोगों को इस्लाम की दावत दी, उस पहाड़ी का नाम क्या है? जबल सौर। ये है जी कोहे सफा। गलती हो गई जी। आपकी बारी है जी। सवाल ये है जो लासानी पूछते हैं, अमेरिका के महकमा दिफा का मखसूस नाम क्या है? यह है जी पेंटागन। गंधारा तहजीब का मरकज कौन सा शहर है? टेक्सला। टेक्सला जवाब दुरुस्त है जी। अटक के मकाम पर दरियाए सिंध से कौन सा दरिया मिलता है? यह है जी दरियाए काबुल। हजर अस्वद को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में नस्ब किया तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक क्या थी? 35 साल। 35 बरस जवाब दुरुस्त है जी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? गुद्दू। यह है कोट अद्दू पावर स्टेशन, मुजफ्फरगढ़, पंजाब। चौधरी रहमत अली ने 1933 में एक तंजीम किस नाम से कायम की? पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट। और 1933 में ही चौधरी रहमत अली ने हमारे इस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा था जी। 15 फरवरी को उर्दू और फारसी के किस अजीम शायर की बरसी मनाई जाती है? पैदाइश 1757 है और वफात 1859 है। मिर्जा गालिब। शुक्र है खुदा का, एक जवाब दुरुस्त है। मिर्जा गालिब जी जो सूरत हाल है बता दीजिए जी। जो शानदा प्लस मलट्ठी के पहले सेमीफाइनल में ताहिर अल्ताफ आपने 2 सवालों के जवाब देते हुए 200 नंबर हासिल किए हैं और आरफा आफ्ताब आपने सिर्फ 1 सवाल का जवाब देते हुए 100 नंबर हासिल किए हैं। तो फाइनल ताहिर अल्ताफ आप खेलेंगे। लासानी की तरफ से अब आपने फाइनल खेलना है जी, और तैयारी पूरी करके आइएगा अगले प्रोग्राम में। और लासानी की तरफ से आपको उनके तोहफे और ये लिफाफा जिसमें कैश है, डबल कैश आपके लिए। और आपने एक सवाल का जवाब दे ही दिया तो आपको भी कैश और उनका तोहफे हैं लासानी के, मुबारक हो जी। आपके लिए तोहफा भेजा है दीवान फूड्स ने। दीवान फूड्स अपना पैगाम देते हैं कि लाइफ विद स्पाइस। सवाल बड़ा आसान है, फूलों का मुल्क किस मुल्क को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जवाब दुरुस्त है जी। दीवान फूड्स के ये दोनों तोहफे आपको मुबारक हो बेटा। जी टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने ये वॉशिंग मशीन का तोहफा भेजा है। ये उस जोड़े के लिए है जो इस वक्त इस छत के नीचे नया नवीला जोड़ा हो। जी भाई, ये खुशगवार हादसा कब हुआ? 21 जनवरी
सन 2018 21 जनवरी 2018 7 जनवरी 2018 7 जनवरी 18 17 सितंबर 17 17 सितंबर 17 22 जनवरी 2018 22 जनवरी 18 19 दिसंबर 17 19 दिसंबर 17 24 सितंबर 2017 24 सितंबर 17 22 जनवरी 2018 वाले कौन दोस्त हैं? बाईस जनवरी 2018। अच्छा, आप इधर आ जाए खातून, निकाह नामा तो होगा। नाम हम आपका कहीं लिखा ही नहीं है क्या? मोहल्ले वालों का ले आए? चलिए, बहरहाल है तो सही जी। ये बताएं कि खैर से बारात में कितने लोग आए थे? तकरीबन 350 होंगे। तकरीबन 350। और बारात में खाने को क्या दिया था इन्होंने? कोरमा था, साथ में वो था जर्दा था और नान वगैरह। खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ कहाँ की सैर की? मड़ी गए हैं वैसे फिलहाल तो हाल ही। लीजिए जी, आप आखिरी काम कर दें, ये तो पकड़े जरा। एक घुटना टेक के फूल पेश करें। आप आगे आए, आप उधर ऊपर देखिए। चलिए जी, आपको मुबारक हो और अल्लाह आप सबको तादेर खुशो खुर्रम रखे और ये कामयाब व कामरान रहें आपके जोड़े। प्रोग्राम ख़त्म हो तो अब ये वॉशिंग मशीन आपकी अमानत है, इसको लेकर जाइएगा जी। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बोरी रेस है, ये जो केस पड़ा है वो स्याह रंग का आप देख रहे हैं जी, आप भी देख लें। इसके ऊपर से होके आपने वापस आना है और यहीं अपनी जगह पर जो पहले पहुंच जाएगा वो विनर होगा। वाइटल चाय बनाने वालों का तोहफा है। वाइटल चाय अपना पैगाम देते हैं कि वाइटल चाय पियो, जिंदगी जियो। 1 2 गो। वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से आपने बोरी रेस में कमाल कर दिखाया, आप गिरे भी नहीं। उनकी तरफ से उनके तोहफे हैं और कैश का लिफाफा भी मौजूद है। बिस्मिल्लाह। जी, दोस्तों के लिए RBS सैनिटरी फिटिंग बनाने वाले कहते हैं कि हमारा मयार हमारी पहचान। RBS सैनिटरी फिटिंग। सवाल यह है कि आबे हयात उर्दू की एक मशहूर किताब है, इसे मुसन्निफ का नाम बता दें। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। आ जाओ आ जाओ। जी, आप दोनों मेहमान हैं विगोरीन के। विगोरीन अपना पैगाम देते हैं कि साल हर साल से समझदार माओं का इंतखाब, माँ का प्यार और विगोरीन यकीनन बेहतरीन। विगोरीन विगोरीन साल हर साल से समझदार माओ।
قیام پاکستان کے تقریباً کتنے سال بعد اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت بنا؟ تقریباً 13 یا 14 سال بعد. نہیں جی، یہ کم و بیش 20 برس کے بعد جی. 23 مارچ 1985 کو کس نے پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا؟ بے نظیر نے. یہ تھے جناب محمد خان جنیجو. غلطی. اردو کے مشہور شاعر مصحفی کا اصل نام کیا تھا؟ غلام حمدانی مصحفی. غلام حمدانی مصحفی. ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بڑا کام رفو کا نکلا. کس سن میں دنیا کا کون سا ملک دنیا کی پہلی کمیونسٹ حکومت بن گیا؟ فرانس. روس. مصر اور عراق میں انسانی آباد کاری کا آغاز کب ہوا؟ تقریباً 2000 سال قبل مسیح. کم بیش 5000 سال قبل مسیح، لیکن میں جواب درست مان لیتا ہوں جی. رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ انڈونیشیا. قازقستان. شارٹ ہینڈ کا موجد کون تھا جی؟ سر آئزک پٹ مین. آئزک پٹ مین. جواب درست ہے جی. ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ کون سا ہے؟ عطارد. جوپیٹر. مشتری. غلطی. آپ نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، تو اس لیے کیش تو میں آپ کو نہیں دے رہا. آپ کا کیش میں ادھر دے رہا ہوں جنہوں نے 3 سوالوں کے جواب دیے ہیں جی. ویگورین کے یہ تحفے آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ جی. جی خواتین و حضرات، سوال و جواب کا سلسلہ وقتی طور پر موقوف کرتے ہیں، اور پس پردہ ایک بہت اچھی گلوکارہ موجود ہے، انہیں سامنے لاتے ہیں. اور یہ مہمان ہیں صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کی. کہتے ہیں کہ کم خرچ اور اجلی دھلائی کے اور پاؤڈروں سے بہتر صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی. صوفی سوپ کی مہمان بھرپور تالیوں میں استقبال نغمانہ جعفری. صوفی سوپ کی. صوفی سوپ نے آپ کے لیے پھول اور یہ تحفے بھیجے ہیں. آپ کو مبارک ہوں. آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی آپ دونوں مہمان ہیں السووینا کے. السووینا اپنا پیغام دیتے ہیں قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ معدے کے السر اور تیزابیت کے لیے لاسانی کا السووینا صفوف اور سیرپ میں بھی دستیاب. لاسانی کا السووینا. السووینا معدے کے السر اور تیزابیت کو ختم کر. سارک ممالک میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا ملک کون سا ہے؟ نو. سب سے بڑا ملک ہے جی بھارت، اور سب سے چھوٹا ملک ہے مالدیپ. یوم پاکستان کے موقع پر فلائی پاسٹ کی قیادت کون کرتا ہے؟ صدر پاکستان. چیف آف ایئر سٹاف. غلطی. قطب جنوبی اور قطب شمالی میں کون سا قطب زیادہ سرد ہے؟ قطب شمالی. قطب جنوبی زیادہ سرد ہے جی. دنیا کے تمام سمندروں کی اوسط گہرائی کتنے میل ہے؟ کوئی اور سوال ہے ایک پوچھ لیں. نہیں کوئی اور سوال نہیں، سوال یہی ہے. اور سن لیں جی کہ دنیا کے تمام سمندروں کی اوسط گہرائی کتنے میل ہے؟ جواب ہے 2 میل. کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد؟ شعر مکمل کر دیں.
मिर्जा गालिब का शेर है, इसका पहला मिसरा क्या है? दूसरा मिसरा है, किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाप। आए है बेकसिए इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। गलती। ख्योड़ा में नमक की कान के अंदर सारा साल एक ही दर्जा हरारत रहता है, कितना? 45 18 सेंटीग्रेड। एल्सोविना के मेहमान, आपसे आखिरी सवाल। मुमताज शायर फैज अहमद फैज का इंतकाल कब हुआ? 20 नवंबर 1984 को जी। आखिरी सवाल, वो कौन सा उमवी खलीफा था जिसने सिंध के हुक्मरानों और वडेरों को दावत इस्लाम के खतूत लिखे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दोनों बोतलें उठाएं और घर जाएं। ये शरबत की बोतलें हैं जी, ये आपके लिए। जी, बैतबाजी का मरहला शुरू होता है। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से राबिया लतीफ और अनीक नव्वाब। जी, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, आप मेहमान हैं लासानी तूतस्या प्लस मलठी के। कहते हैं कि टॉन्सिल्स के ऑपरेशन से पहले जरूर इस्तेमाल करें लासानी तूतस्या प्लस मलठी। लासानी का असल तूतस्या। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, मैसम अब्बास और मोहम्मद रजा मेहमान बनते हैं। टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले मास्टर पेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मास्टर पेंट। दूसरा सेमीफाइनल है जी, इसलिए हमने फैसला अपने हाथ में नहीं रखा, बल्कि फैसले के लिए हमने पाकिस्तान के एक नामवर शायर को दावत दी है, कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद खान। वो सामने तशरीफ फरमा है। इनका फैसला आखिरी और कतई होगा जी। पहला शेर मैं दे देता हूँ, फिर उसके बाद आप आगे चलिएगा। क्यों सबा की न हो रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत, एक दरिया है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत, वार गलत, वक्त उलट दे न बिसाते हस्ती, चाल हम चलते हैं हर बार गलत। क्यों सबा की न हो रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत। तो तिफलाने शहर को कोई दीवाना चाहिए, ऐसे में तुमको घर से निकल आना चाहिए। ये रूहानी है चाहे जीनी आती मसाला है, मेरे दुश्मन का गम भी मेरा जाती मसाला है। ये हम फकीर जो कम कम धमाल डालते हैं, जमीन हिलती है जिस दम धमाल डालते हैं। नौजवान बेटों को शहरों के तमाशे ले उड़े, गाँव के आंगन में कुछ मजबूर माएं रह गईं। न रहा जुनूने रुखे वफा, ये रसन ये दार करोगे क्या, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था वो गुनाहगार चले गए। वो गुनाहगार चले गए, आपने गुनाह पड़ा, बहरहाल चले गए। ये जी, यही कुछ सोचती रहती है एक दहकान की बीवी, वो जब भी शहर जाएगा मेरे कंगन खरीदेगा। एक गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। ये शहर छीन लेता है नक्शो निगार तक, आता हूँ रोज घर में निशानी बता के मैं। नाम तो नाम मुझे शक्ल भी अब याद नहीं, हाय वो लोग, वो आसाब पे छाए हुए लोग। घर से चला तो घर की उदासी सिसक थी, मैंने उसे भी रख लिया रखते सफर के बीच। चीजें गिरती गईं रस्ते में फटे थैले से,
चोर गफलत में ठिकाने का पता छोड़ गया। अलिफ। एक रंज खा रहा है मुसलसल दिमाग को, बारिश में रख दिया है किसी ने चराग को। वो गांव का एक ज़ईफ दहकां सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उसके बेटे शहर को जाकर कभी न लौटे तो लोग समझे। ये दुआएं मांगना कि बेटियों की खैर हो, जब कभी मेले में बिकती चूड़ियों को देखना। आखिर को किसी बात पे हंस पड़ेंगे, रोना तमाम उम्र का बेकार जाएगा। इससे पहले कि यही काम जमाना कर दे, मान ले बात मेरी मुझको रवाना कर दे। ये कच्चे फर्श की बैठक गरीब घर की है, यहाँ गिलास नहीं मेजबान टूटता है। यादों के दरीचों को जरा खोल के देखो, हम लोग वही हैं कि नहीं बोल के देखो। वो बात याद आई नहीं उसको देखकर, जिस बात पर हम एक जमाना नहीं मिले। यारों की खामोशी का भरम खोलना पड़ा, इतना सकूत था कि मुझे बोलना पड़ा। ऐ मुझे सब्र के आदाब सिखाने वाले, जब वो बिछड़ा था वो मंजर नहीं देखा तूने। ये चाय खाने की मेजों पे कहकहों के शरीक, दिलों में झांक के देखो तो सबके सब तन्हा। अभी तक मैं कटहरे में खड़ा हूँ, मेरी मुट्ठी में तितली मर गई थी। ये आंख मुफ्त में कुछ भी नहीं दिखाती मुझे, मैं इसको ख्वाब दिखाता हूँ और देखता हूँ। नजर आए तो उसे देखते रहना कि वो शख्स ख्वाब है और मुकर्रर नहीं होने वाला। आंगनों में दफन होकर रह गई सब ख्वाहिशें, हाथ पीले होते होते रंग पीले हो गए। ये जरूरी है इन्हें कल की जमानत दी जाए, वरना सड़कों पर निकल आएंगे हमारे बच्चे। यही तो होता है उजलत में घर बनाने से, कहीं की ईंट कहीं पर लगाना पड़ती है। ये जो दीवार से लग जाते हैं चलते हुए लोग, आपका रास्ता हमवार किया जाता है। आपका रास्ता हमवार किया जाता है। यहाँ तो शहद की मक्खी भी खुश नहीं रहती, ये शहर चादरें फूलों पे तान देता है। यूं तराशूंगा गजल में तेरे पैकर के नुकूश, वो भी देखेगा तुझे जिसने तुझे देखा नहीं। नून। नहीं मियाँ, भला तलवार क्यों निकालूं मैं, अगर मैं लफ्ज की ताकत से जीत सकता हूँ। नारसाई की कसम इतना समझ में आया, हुस्न जब हाथ न आया तो खुदा कहलाया। एक किरदार की उम्मीद पे बैठे हैं ये लोग, जो कहानी में हंसाने के लिए आता है। ये तेरे बाद खुला है कि जुदाई क्या है, मुझसे अब कोई अकेला नहीं देखा जाता। इतना बिखराव सिमटने में कहाँ आता है, घर की हर चीज को आदत है तेरे हाथों की। ये नहर उसकी है, इस पर किनारा उसका है, वो जिसके साथ है लाहौर सारा उसका है। ये जरूरी तो नहीं हीर फकत झंग से हो, यार का शहर तो लाहौर भी हो सकता है। हो सकता है। यारो मुझे मसलूब करो तुम के मेरे बाद, मुमकिन है तुम्हारा कदो कामत निकल आए। याद कर लेते हैं हर रोज तेरे मिलने को, दूसरे शहर से आया तो नहीं जा सकता। अरे ये सिर्फ बहाना है बात करने का, मेरी मजाल में झगड़ा करूं जनाब के साथ। आप ते का शेर पढ़ सकते हैं। तुम बहुत दूर और मेरे पास, एक ही समत का किराया है। ये तीर यूं ही दुश्मनों तलक नहीं जाते, बदन का सारा खिंचाव कमां पे पड़ता है। ये मस्खरों को वजीफे यूं ही नहीं मिलते, रईस खुद नहीं हंसते हंसाने पड़ते हैं।
वाह। हंसाने पड़ते हैं नून। नींद उठे हुए लोगों को मना लाई है, आंख खोलूंगा तो ये फिर से बिछड़ जाएंगे। ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, आंखें नहीं रहीं कि तमाशा नहीं रहा। आंखें नहीं रहीं कि तमाशा नहीं रहा। बस जी, जो वक्त आप दोस्तों के लिए मखसूस था वो तमाम हुआ। जनाब अता मोहम्मद खान, अगर उन्होंने नतीजा मुरतब कर लिया हो तो तशरीफ ले आए। पहले अपने अशार, उसके बाद फिर नतीजा। आप इजाजत दें तो सर अपनी पंजाबी नज्म मैं पेश कर देता हूँ। चलिए जी। मैं तख्त हजारा छड़ के आ बैठा तेरे कोल। मैं तख्त हजारा छड़ के आ बैठा तेरे कोल। तू काफी शाह हुसैन दी मैं वारिस शाह दे बोल। वाह। तू काफी शाह हुसैन दी मैं वारिस शाह दे बोल। तू हीर से आलन जाब दी तेरा रूप खुदा दी शान। तू हीर से आलन जाब दी तेरा रूप खुदा दी शान। तेरे लौंग च सूरज लिशकदा तेरे नैना विच किरपान। वाह। तेरे लौंग च सूरज लिशकदा तेरे नैना विच किरपान। नी कुड़िए उड़ पड़ जानिए सानू रावां विच न रोल। तू काफी शाह हुसैन दी मैं वारिस शाह दे बोल। और शेर देखिएगा, मेरा प्यार निरा पंजाब है। मेरा प्यार निरा पंजाब है। मेरा दिल पिपल दी छां। मेरा सीना सतलुज वगदा दिल वसदा होया ग्रां। वाह। मैं तेरे वर्गा जापदा आ बह जा मेरे कोल। तू काफी शाह हुसैन दी मैं वारिस शाह दे बोल। और तारिक भाई आखिरी बंद देखिएगा, आ नफरत इथों कढ़िए। आ नफरत इथों कढ़िए ते करिए प्यार दी गल। आ नफरत इथों कढ़िए ते करिए प्यार दी गल। ए बंदे भुखे प्यार दे कोई सुख सुनेहा कल। वाह। आ नफरत इथों कढ़िए ते करिए प्यार दी गल। ए बंदे भुखे प्यार दे कोई सुख सुनेहा कल। मैं पग बन्ना पंजाब दी तू चुन्नी सिर ते खोल। तू काफी शाह हुसैन दी मैं वारिस शाह दे बोल। वाह, माशाअल्लाह। बहुत मयारी शेर आए, तो मेरे हिसाब से ये जो टीम 1 है इनके अशार बड़े मयारी थे। जी, जज साहब की मौजूदगी में मैं इनका फैसला दोहराए देता हूं। इनके फैसले के मुताबिक आज बैतबाजी के दूसरे सेमीफाइनल में मास्टर पेंट्स की टीम जीत गई है और लासानी तूतसिया की टीम दूसरे नंबर पर रही है। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मैसम अब्बास और मोहम्मद रजा आज के फातेह ठहरे और ज़रई यूनिवर्सिटी फैसल आबाद से राबिया लतीफ़ और अनीस नवाब आप दूसरे नंबर पर आए। जी, उनके तोहफे दोस्तों के आपके सामने हैं, ये कबूल कीजिए और बिस्मिल्लाह। जी, वाइटल ब्यूटी सोप के आप मेहमान हैं चारों, और किस है जो ज्यादा नंबर हासिल करेगा वही जीत जाएगा। इसमें ये देखने की बात है कि ये सुर्ख रंग जो है ये खतरे की निशानी है, ये मनफी हो जाएंगे नंबर, और बाकी ओपन है आपके सामने। जहां कुछ नहीं लिखा हुआ उसके 100 नंबर हैं। जी, पहले मेहमान आ जाएं। जी, यहां से 2 तीर उठा लें। यस, $35 नंबर। जी, दूसरा तो इन्होंने गिरा दिया। जी,
22 नंबर जी इसको जी। चलिए 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 दूसरा। 100 तो माइनस हो गए और 46 नंबर हासिल किए। 100 में से 46 निकाल दें, वो इन पर हमारा कर्ज है जी। जी दूसरा। सात नंबर है जी। जी वाइटल ब्यूटी सोप की किस्मत के चक्कर में आयशा आपने 35 नंबर हासिल किए हैं। आसफा आपने 22 नंबर हासिल किए हैं। फौजिया आपने हमारे 54 नंबर देने हैं और रिमशा आपने 7 नंबर हासिल किए हैं। तो आयशा और फौजिया आप लोगों ने क्योंकि ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं तो वाइटल ब्यूटी सोप के कैश प्राइजेस आपके लिए, और फौजिया और रिमशा आप लोगों के लिए वाइटल ब्यूटी सोप के गिफ्ट। थैंक यू सो मच। जी आपके लिए तोहफा भेजा है दीवान स्ट्रॉन्ग चाय बनाने वालों ने। दीवान स्ट्रॉन्ग चाय बनाने वाले पैगाम देते हैं, दीवान चाय पियो चुस्ती से जो। दीवान चाय। सवाल सुन लीजिए, बड़ा आसान है और जिनको नहीं आता उनके लिए मुश्किल है। उस मशहूर जंगजू हमला आवर का नाम बताइए जो अपने हमले के वक्त कहा करता था कि आसमान पर सिर्फ एक खुदा, एक सूरज और धरती पर सिर्फ एक खान है। कौन था ये? चंगेज खान। चंगेज खान। जी लासानी अर्क महजल का मरहला है और उनका पैगाम है वजन घटाएं सेहत पाएं। लासानी अर्क महजल। लासानी का अर्क महजल। वजन घटाएं सेहत पाएं मोटापे। म्यूजिकल चेयर का आज फाइनल है। जीतने वाले के लिए 10,000, सेकंड के लिए 5,000, थर्ड के लिए 3,000। तो नाम मैं पुकारता हूँ, तशरीफ ले आए। मदिया फारूक, मिसेस मोहम्मद अख्तर, हबीबा, हिना मोहसिन, फायजा जफर, जरलिश और समन मुस्तफा। मिसेस अख्तर और फायजा जफर नहीं आए। मुझे 2 मेहमान चाहिए, किस्मत का खेल है। जी लासानियर के महजल का मरहला है 1, 2, गो। एक, दो, गो। एक, दो, गो। One, 2, go!
फर्स्ट आई हैं आपके लिए 10,000 रुपया है जी। आप मेरे साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सेकंड आई हैं, आपके लिए एल्सोविना के तोहफे और उनके फूल 5,000 रुपया आपके लिए है जी। और आप थर्ड आई हैं, आपके लिए फूल और 3,000 रुपया है जी। जी ख़वातीन हज़रात, अपने अपने कार्ड्स निकाल लें। इसमें से मैं इसको घुमा के और फिर 3 कुर्रा अंदाजियां हैं, 3 इनामात हैं, कैश भी है और तोहफे भी हैं जी। $337, 338 दूसरी कुर्रा अंदाजी, और ये कुर्रा अंदाजी वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से है। कहते हैं कि वाइटल ब्यूटी सोप पाकिस्तान का पहला हलाल सोप। हुस्न को देखो एक नजर से, वाइटल ब्यूटी सोप। $495, 496 तीसरी और आखिरी कुर्रा अंदाजी जी, वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से $423, 424 जी। आप तीनों मेहमानों का नाम कुर्रा अंदाजी से निकला है। ये कुर्रा अंदाजी वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से है। उनकी तरफ से आप तीनों के लिए कैश और उनके अपने तोहफे और फूलों के तोहफे। आप तीनों को मुबारक हो जी। बिस्मिल्लाह। जी ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले बुध को फिर हाजिरी देंगे। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज। वतन अजीज को दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।